নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ প্রতিবেদনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। একদম লোকসভা ভোটের শেষ মুহূর্তের প্রচারে রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী এই মুহূর্তে গুঞ্জরিয়া অঞ্চলে, আপনাদের জানিয়ে দিই সেখানে ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জাভেদ আখতার থেকে শুরু করে এই অঞ্চলের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট হুদা সাহেব, মাইনরিটি সেলের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রেহান আলম থেকে শুরু করে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন জনাব হুদা সাহেব তাকে মালা দিচ্ছেন। পাশাপাশি তৃণমূল নেতা সাদিকুল ইসলাম, নূর হাসান নূর থেকে শুরু করে রতন সরকার এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা এবং পুরো অঞ্চল প্রেসিডেন্ট থেকে অঞ্চল বোর্ড প্রত্যেকে রয়েছে। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। একদম শেষ মুহূর্তে প্রচার এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে এই অঞ্চলের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান হুদা সাহেব তাকে হচ্ছে মালা পরিয়ে বরণ করে শেষ মুহূর্তের প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের বার্তায় আমরা সেটা শুনব। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সত্য কংগ্রেসের 2 ব্লক প্রেসিডেন্ট সাদিকুল ইসলাম তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছেন এবং সঙ্গে নূর হাসান নূর তারা কিন্তু প্রত্যেকে রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ এবং তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা তারা কিন্তু উপস্থিত আছেন। সরাসরি সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই আজ সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত মিটিং চললেও ঠিক তার আগের মুহূর্তেই কিন্তু ফের কংগ্রেসে ভাঙন ধরালো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। আপনাদের জানিয়ে দিই শেষ যে সদস্যরা ছিলেন কংগ্রেসের গুঞ্জরিয়া বোর্ডে তারা কিন্তু আজকে মন্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূলের পতাকা ধরে তারা কিন্তু আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে সামিল হবেন। এই মুহূর্তে সরাসরি সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কারা কারা আজকে যোগদান করছেন এবং কি বার্তা দিচ্ছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানী থেকে শুরু করে তৃণমূল कॉन्ग्रेस सीनियर नेता लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बड़ा कर बैठ जाएं। आपके सामने मंत्री जी वक्तव्य बोले कि पहले तो ज्वाइनिंग सभा होगा। मैं डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मंत्री जी के हाथ से जितने भी आपके कांग्रेस चाहे हुए तृणमूल में भाई लोग, मेंबर लोग, पंचायत समिति हैं, फौरन हम लोग को ज्वाइन कराएं। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সত্য ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাদিকুল ইসলাম যিনি হচ্ছেন কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদান দিয়েছিলেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে তারই হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে সামিল হচ্ছেন। সরাসরি সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। तमामी लोग मंत्री साहब के सामने आ जाएं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं मुश्ताक अहमद साहब का जो ग्राम पंचायत के जीते हुए मेंबर हैं कांग्रेस से। दूसरा नाम है आकाश साहब का जो जीते हुए मेंबर हैं। उसका वजील्ला साहब, शमीम शाह साहब और हमारे मेराज आलम साहब जो अंचल प्रेसिडेंट है पंडित फतेह 1 के। उसके बाद आलमगीर साहब जो गैसल 1 के अंचल 2 के अंचल प्रेसिडेंट है। एमसीसी कोटा অবধি আছে, লাস্ট পর্যায়ের কোটা অবধি না। उसके बाद में अहमद रजा साहब को जो जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक के हैं, अली रजा वाइस प्रेसिडेंट एंड यूथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनामुल हक साहब जो एक बहुत बड़े बाप के साहिबजादे हैं। उनका बाप का नाम तमाम लोग इलाके के लोग जानते हैं। पीसीसी मेंबर है यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी यहाँ मौजूद है। उसके बाद अंसार आलम उर्फ गब्बर नाम तो सुना ही होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे ब्लॉक के और उनका कांग्रेस में एक बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी मैं सामने दावत दे रहा हूं। और उसके बाद कुछ नाम हमारे साथ ऐसे हैं जो गैसल 1 के जीते हुए मेंबर हैं जो ऑलरेडी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। मैं रतन दास साहब का नाम लूंगा, वो ज्वाइन कर चुके हैं। खुश मोहम्मद साहब, अजीमुद्दीन साहब, नफीस नूर साहब, तला साहब, राजीव साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे कांग्रेस के, जिशान अहमद साहब जीते हुए पंचायत समिति के मेंबर और नदीम अख्तर साहब हमारे जीते हुए पंचायत समिति के मेंबर। उन लोगों का भी स्वागत करता हूं मैं। और मैं हमारे इलाके के आन बान शान और कुछ लोग तो नाम के होते हैं, काम के नेता अगर जाना जाएगा तो जनाब गुलाम रब्बानी साहब को जाना जाएगा क्योंकि ये काम के नेता हैं। आप जानते होंगे कि कद कामत में छोटे हो सकते हैं लेकिन इनका हाथ और इनका सोच बहुत लंबा है। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর হাত ধরে কিন্তু বন্দে মাতরম এবং সেই সঙ্গে জনবন্দে মাতরম থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের সরাসরি সেই চিত্র
ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, रब्बानी এবং জাভেদ अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, কংগ্রেসে হাত তোলেন। मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, जावेद अख्तर साहब जिंदाबाद, रिहान भाई जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब जिंदाबाद, इंडिया के सभी लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आपके सामने बस हो गया, आप लोग आइए। टाइम शॉर्ट है, करना है। अभी आपके सामने वक्तव्य रखेंगे हमारा प्यारा नेता, हमारा नौजवान नेता, हमारा कांग्रेस का दिलों का धड़कन था, जो आज छोड़ के जो है दीदी का उन्नति को देख के टीएमसी में ज्वाइन किए हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सादिकुल इस्लाम साहब आपके सामने वक्तव्य रखेंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब का कि उनके मशवरे ने रंग लाया और उनके मशवरे और उनके आदेश को फॉलो करते हुए आज उनके परिवार में हम लोग शामिल हुए हैं। तो मैं इतना कहूंगा उनके बारे में, उनकी मसरूफियात और उनकी बिजी शेड्यूल और तरक्की के काम काज को देखकर इलाके के लोग बोल उठते हैं कि आज हमारे इलाके में, हमारे उत्तर दिनाजपुर में, हमारे नॉर्थ बंगाल में अगर कोई एक ऐसा लीडर है जो हमेशा हमारे इलाके के तमाम लीडरों को एक ही धागा में पिरो के रखते हैं तो वो गुलाम रब्बानी साहब हैं। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जिधर देखो सारा आलम ही प्यासा है। उनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ स्पेशली, जिधर देखो वो सारा आलम ही प्यासा है, एक बादल का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसूं, एक बादल का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसूं। ये शेर मैंने इसलिए कहा जब मैं उनसे करीब हुआ, करीब के बाद करीबी हुआ, उनसे बातचीत की, उनसे डिस्कशन हुआ, उनसे मशवरे लिया तो मुझे पता चला कि ये एक हमारे इलाके के काम के लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, आइडियल लीडर हैं, मिसाली लीडर हैं, जिनको हम आइडियल बना सकते हैं सियासी तौर पर, जिन्होंने हमारे इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बंगाल में अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, दीदी के लिए जो उन्होंने काम किया है तो ना उसको दीदी फरामोश कर सकती है, ना टीएमसी के कोई लीडर फरामोश कर सकते हैं, ना इलाके के अवाम फरामोश कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वो हमारे ऐसे लीडर हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें रहनुमाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें क़यादत हासिल है उनका। तो हमको, आपको, सबकी ये जिम्मेदारी है कि आज जब उनको जरूरत है, उनके संगठन को जरूरत है कि आज उनके कैंडिडेट को जिता करके सांसद पहुंचाना है। दीदी ने उनको जो जिम्मेदारी दिया है, उनके कंधे पर जो बोझ दिया है, उस बोझ को हम तमाम लोग अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम लोग उनके बोझ को उठाकर, उनके कंधे के बोझ को हल्का करके उनका सर जो है फख्र से ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन मैं दो चार शेर ये भी बोलूंगा कि ये जो मंदी का जमाना है, ये जो मंदी का जमाना, मेरे किसी दोस्त को बोला था, इशारों में बात करूंगा, शेर शायरी में बात करूंगा, समझना आपका काम है। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि दोस्त ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दो, ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दो, फिर पता किसको चलेगा कि मेरी कीमत क्या है, फिर पता किसको चलेगा कि मेरी कीमत क्या है। और उनको ये भी बता देना चाहता हूँ, गुलाम रब्बानी साहब की सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में, कि बहुत शोर सुनता था पहलुओं में दिल था। ये मेरे दोस्त के लिए है। बहुत शोर सुनता था पहलुओं में दिल का, जब चीरा तो कतरा फूल भी न निकला। बहुत शोर सुनता था पहलू में दिल का, जब चीरा तो कतरा फूल भी न निकला।
तो आगे बढ़ते हुए जो देश के हालात है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आदिवासी खतरे में है, छोटी जाति खतरे में है, ओबीसी खतरे में है, जब देश की प्रॉपर्टी खतरे में है, तो ऐसे वक्त में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आखिरी बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है, आखिरी बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। जब ये जमायत गई तो दुनिया में रुसवात हुए। इसका मतलब क्या है? आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत, मिल्लत मतलब नेशन और जमायत मतलब एकता, यूनिटी। तो अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था और आज वो बात साबित आ रही है कि अगर आप बिखरे हुए रहोगे, बटे हुए रहोगे, अलग रहोगे, अलग मतभेद होगा, अलग विचारधारा होगा, तो कोई नहीं बचोगे, तुम भी पछताओगे, वो भी शर्मिंदा होगा, हम भी मरेंगे, तो तुम भी तो डूबे सनम, हमको लेके डूबे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो ऐसे हालात में जब मोदी और अमित शाह इस देश के प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, देश को उलझा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे वक्त के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। जब ये जमायत गई तो दुनिया में रुसवा तो हुई। तो मैं देश के हालात के लिए शेयर करना चाहता हूं कि हमारी खामोशी को, ये मोदी और अमित शाह बीजेपी की तरफ इशारा है, एकदम खुल के बोल रहा हूं कि हमारी खामोशी को तुम इजाजत ना समझ लेना मोदी, हमारी खामोशी को तुम इजाजत ना समझ लेना और हमारे सब्र को तुम बुज़दिली ना समझ लेना। अरे हमने भी इस देश के लिए खूब बढ़ाया है, इस देश को अपने बाप की जागीर मत समझ लेना, इस देश को अपने बाप की जागीर मत समझ लेना। और लास्ट में टाइम की कमी की वजह से एक शेर पढ़ के मैं आपसे रुखसती ले लूंगा। आप समझदार हो, अकलमंद हो, होशियार हो। कहते हैं अरबी में कि लाकिले तफील इशारा, अकलमंदों के लिए इशारा काफी होता है। एक शेर है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और मैं जब मर जाऊं तो मेरे पेशानी में हिंदुस्तान, जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी में अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी में अलग पहचान लिख देना और लहू से मेरी पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना। तो देश के हालात को देखते हुए हम तमाम लोगों को एक ही बैनर तले, एक ही छत तले, एक ही विचारधारा तले आना पड़ेगा। और गुलाम रब्बानी साहब की विचारधारा, उनकी आइडेंटिटी और उनकी आइडियोलॉजी, दीदी की आइडियोलॉजी और इसे बंदोबस्ताई की आइडियोलॉजी पे हाथ से हाथ मिलाकर हम तमाम लोगों को 26 में वोट का बंटवारा करने नहीं देना है। अगर वोट का बंटवारा करेंगे तो बीजेपी आएगी, और अगर बीजेपी आएगी तो महंगाई लाएगी, चूल्हे सितम लाएगी, कत्ले गारत लाएगी, दंगा फसाद लाएगी। तो इसलिए तमाम लोगों को एक मुश्त होकर, एक इकट्ठे होकर के, यूनाइट होकर के, इत्तेहाद के साथ दीदी की कैंडिडेट को वोट दे करके सांसद पहुंचाना है। जय हिंद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। बहुत अच्छा सादिक साहब, बहुत खूब। अभी मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दूंगा जावेद मामा, क्योंकि 6 बजे मीटिंग खत्म है। नहीं कोई नहीं बोलेंगे, आपके बाद मंत्री जी को बोलेंगे, क्योंकि मंत्री जी को सुनने के लिए आप लोग जमा हुए हैं। हम लोग तो बोलते रहते हैं, लोकल नेता है। तो मैं अभी आपके सामने 15 मिनट आपके सामने हमारे जिला के रिप्रेजेंटेटिव जनाब जावेद साहब को बोलने के लिए कहूँगा। थोड़ा सा साइड भाई, थोड़ा एक साइड हो भाई, सुब्रत बसे जाओ, सुब्रत बसो। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। आज गुजरिया के सरजमीन पर हमारे प्रधान और इस चुनाव सभा के सदर और इस अंचल के प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस के जनाब मोहम्मद हुदा साहब के नेतृत्व में ये चुनाव सभा का आयोजन किया गया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। और इस चुनाव सभा में महीने से भी ज्यादा हो चुका हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री, लेकिन हमारे उत्तर दिनाजपुर के एक फख्र है, हमारे इस माटी का एक गौरव है जनाब गुलाम रब्बानी भाई। मैंने देखा है कभी कोई मंत्री आता है तो लगता है कि कौन आ गया, उसका दर्शन करने से महरूम हो जाते हैं, उससे हाथ मिलाने से पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब गुलाम रब्बानी साहब हमारे यहाँ आते हैं तो लगता है कि मंत्री नहीं, हमारी माटी का औलाद आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, हमारा साथी आ रहा है। ये रिश्ता इनसे जुड़ा हुआ है। आज इनके हाथ के जरिए से हमारा इलाका भी बहुत तरक्की किया। ममता दीदी के उन्नयन में उन्होंने इतना हाथ बटाया है कि अपने इलाके को, अपने उत्तर दिनाजपुर जिला को सजाने का काम किया है। आज हमारे यहाँ पे मौजूद है हमारे इस अंचल के जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर, पंचायत समिति, एक्स मेंबर, एक्स पंचायत समिति मेंबर, और हमारे यहाँ पे मौजूद है माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे अलहाज रेहान बाबू यहाँ पे मौजूद है, हमारे सादिकुल इस्लाम साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, नूर आलम साहब, ये हमारे ग्वाल पोखर के कांग्रेस के दिग्गज ब्लॉक प्रेसिडेंट, और सादिकुल इस्लाम साहब इस्लामपुर ब्लॉक के वो दिग्गज प्रेसिडेंट रहे। इनके साथ पूरी टीम थी पूरे हमारे इस्लामपुर ब्लॉक में। उनका ग्वाल पोखर ब्लॉक में हमारे चकलिया ब्लॉक का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है मुस्तफा साहब, इत्तेफाक से वो नहीं आ पाए, वो भी कांग्रेस के थे। आज सभी कोई कांग्रेस छोड़कर दीदी के झंडा को पकड़ने के लिए रब्बानी साहब के नेतृत्व में, कभी करीम साहब के नेतृत्व में, कभी चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, कभी प्रधान साहब के नेतृत्व में, कभी हमारे नेतृत्व में, सभी के सभी जुड़ चुके हैं। एक ही मकसद है, मकसद ये है मेरे भाइयों, मैं ज्यादा बात नहीं बोलना चाहता हूं, बाकी सारी बात आज मंत्री साहब बोलेंगे। सिर्फ मकसद है कि आज देश को बचाना है, आज देश को बचाना है, और जिसका हम खाते हैं उसका गुण गाना चाहिए। वो ममता दीदी की इज्जत को बचाना है। किसका इज्जत? ममता दीदी की इज्जत, जो हमारे घर में मां बहनों से लेकर, हमारे युवक पीढ़ी से लेकर, बूढ़े बुजुर्गों से लेकर, विधवा से लेकर, हमारे मासूम बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर, हमारी बहनों की पढ़ाई लिखाई से लेकर, कन्याश्री के माध्यम से, रूपश्री के माध्यम से, सुबह साथी के माध्यम से, स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से, और कृषि भत्ता के माध्यम से, कृषि बंधु के माध्यम से, इस तरह का फ्री राशन के जरिए से हमारे घर में यही ममता बनर्जी है जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन की है कि वो घर घर में तरक्की पहुंचाती। तो मैं वही कहता हूं मेरे भाइयों, आज ममता बनर्जी हमारे घर में, हमारे दुख मुसीबत में, हमारे हर हाल में वो मेरे पास में खड़ी होती है, हमें वो सहारा देती है। उसका छाप लेकर कभी हम ग्राम पंचायत का मेंबर बनते हैं, कभी ग्राम पंचायत टीएमसी का, पंचायत समिति टीएमसी का, जिला परिषद टीएमसी का ममता दीदी के छाप के जरिए से बनता है। आज ममता बनर्जी कहती है कि जब तुम्हारा वक्त आता है मेरे दोस्तों तो मैं तुम्हारी इज्जत बचाने जाती हूँ। आज मेरा इज्जत का सवाल आ गया, क्या तुम मेरा इज्जत नहीं बचाओगे? बचाओगे? तो एक बात बता दीजिए कि ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, पीछे वाले भाई, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। आज मैं वही कह रहा था कि आज देश की इज्जत का सवाल है।
आज मान मर्यादा का सवाल है, आज हमारी हिफाजत का सवाल है। आज थोड़ी सी भी लापरवाही हम करेंगे, अपने हाथ में 2019 जैसा बंटवारा करेंगे अपना कौम के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, तो याद रखना यही अमित शाह, यही मोदी चिल्लाता है तो ममता बनर्जी मेरा 18 सीट बंगाल में है एमपी का, अगर इस बार 20 सीट हो जाएगा तो एनआरसी रहकर हम बंगाल में भी घुसा देंगे। जवाब देने वाली एक ही नेत्री है पूरे हिंदुस्तान का, हर पार्टी के तरफ से ममता बनर्जी अकेली बोलती है, अमित शाह, मोदी बाबू, राजनाथ खुले का खोलकर, जब तक ममता बनर्जी के अंदर खून का कतरा है, जब तक ममता बनर्जी के अंदर जान है, जिंदा है, तब तक तुम्हारा एनआरसी पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देगा। ये कहता हूं मैं दोस्तों, समय आ गया है, वक्त आ गया है, नौजवानों अपने माथा पर तोड़ पाइए और कफन बांधकर ये सांप्रदायिक दल के साथ लड़ाई करके ममता बनर्जी के नेतृत्व में उसको हराना है तो हम सबका वोट एक चटिया जाना है, तृणमूल के छाप पर, 2 नंबर के छाप पर, कृष्ण कल्याणी के छाप पर। ये याद के रहेंगे ना 26 तारीख को वोट किसमें? तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बाबू जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी भाई जिंदाबाद, और आप जितने भी यहाँ आए हुए हैं सभी को जिंदाबाद। बहुत अच्छा, 60 साल की उम्र में भी इतना बढ़िया बोलते हैं। अभी आपके सामने 1 घंटा बाकी है, लेकिन हम लोग 45 मिनट में खत्म करेंगे। नहीं भैया, 45 मिनट बोलेंगे ना, आधा घंटा। गुंजरिया अंचल के तमाम कर्मी भाइयों, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन 5 मिनट फिर बोलूंगा। मंच पर तशरीफ हमारे और आपके इस्लामपुर पूरे पश्चिम बंगाल के हरदिल अजीज रहनुमा, जिसको 40 साल के बाद दीदी ने अपना कुर्सी दे दिया था, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, जनाब मंच पे बैठे इज्जत मुआब जनाब गुलाम रब्बानी साहब मिनिस्टर, आपके बगल में बैठे हमारे मामा जो 60-62 साल की उम्र में भी बहुत जोरदार बोलते हैं, जनाब जावेद मामा जो 15 साल से आपके बीच में खिदमत है। आपके बीच में हमारे चचा जनाब हुदा चचा, जिसका लड़ाई जिंदगी भर कम्युनिस्ट से रहा, 25 साल छतिया कानून में कोई आल ऐसा नहीं था जहां वो नहीं सोता था, इतना जुल्म होता था उनको सीपीएम का। बहुत साल के बाद उनको प्रधान सीट मिला है, इसमें जलन और हसद का बात नहीं है। एक रात उसका आपको याद है, एक रात वो कैसा गुजारा है। अल्लाह ताला सबका मकसद पूरा करता है, ईश्वर भगवान सबका मकसद पूरा करता है। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद बहुत हो गया, इनकलाब जिंदाबाद बहुत हो गया। गुंजरिया अंचल में यह इनकलाब जिंदाबाद होता था, आग दिन में आग लगता था। यहाँ इनकलाब जिंदाबाद होता था, में आग जलता था। यहाँ इनकलाब जिंदाबाद होता था, माटीगुंडा बंटू में आग जलता था सीपीएम का। अभी भी देखते हैं कि 2-4 झंडा इनकलाब जिंदाबाद लगा हुआ है। ये सामने एक बैनर देख रहे हैं जिसमें विक्टर बाबू का फोटो नजर आ रहा है। विक्टर बाबू का फोटो देखिए, उसके नीचे दाएं साइड में कांग्रेस का हाथ छाप देखिए, उसके ऊपर में सीपीएम का झंडा देखिए। यही सीपीएम बोलता था आज से 25 साल पहले तक, 25 साल से लेकर 30 साल, यही सीपीएम गुंजरिया अंचल में बोलता था कांग्रेस काला हाथ देंगे दो गुड़िया दो। यही सीपीएम का कैंडिडेट जनाब रमजान साहब जो बात पहुंचता बोलता था कांग्रेस काला हाथ देंगे दो गुड़िया दो। यही सीपीएम का अपने आलम सराबी साहब बोलता था कांग्रेस काला हाथ देंगे दो गुड़िया दो। यही दिग्विजय से 1 साल पहले बोलता था कांग्रेस काला हाथ देंगे दो गुड़िया दो।
बहुत शर्म का बात है। इस सीपीएम के साथ दीदी ने लड़ा क्या? वो सीपीएम वो कांग्रेस नहीं है। आज का कौन कांग्रेस है? देखिए, आज का वो कांग्रेस नहीं है जो पिछली 64 जमीन में बरगद का पेड़ बनकर जनाब मरहूम अलहद इमादुद्दीन साहब कांग्रेस का झंडा को लेकर के भारत का केंद्रीय मंत्री दास मुंशी को मुखातिब करता था। वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस हबीबुर रहमान करता था। वो कांग्रेस नहीं है जो अब्दुल करीम चौधरी साहब करता था। और वो कांग्रेस नहीं है जो गुलाम रब्बानी साहब करता था। वो कांग्रेस नहीं है जो प्रियंका दास मुंशी करता था। ये दीपा दास मुंशी का कांग्रेस है। और वो सीपीएम भी नहीं है जो मरहूम हमारे इज्जत रहनुमा फारूक आजम साहब करते थे। आज अगर सीपीएम का कोई नेता, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, बहुत मन में बात था, लेकिन हमको तो हमारा हर दिल अजीज रहनुमा जनाब गुलाम रब्बानी भाई साहब को सुनना है, उनको सुनना है। वो कांग्रेस नहीं है और वो सीपीएम नहीं है। मेरे गुंजरी अंचल के लोगों, ये आदमी सीपीएम के साथ लड़ाई करने में खड़ा चाहिए। रात को मेरे वालिद साहब के साथ बैठा रहता था। हमारी अम्मी को रोड में सुला दिया गया था। हमारा बहना को रोड में सुला दिया गया था। सीपीएम के लोग बोलते थे इन पर गाड़ी चला दो। याद कीजिए, वही सीपीएम ने जिसको भीख मांगकर हम लोग जिताए थे कि हमारा गुंजरी अंचल पे एमएलए होगा, इतिहास में नाम होगा, गुंजरी अंचल में कैबिनेट मिनिस्टर होगा। पूरा गुंजरिया कैसर बंटू पंडिस्पता बंटू यहाँ तक कि जो 5 अंचल जो इमादुद्दीन साहब मरहूम अलहद जनाब इमादुद्दीन साहब जो करीम साहब का राइट था, हमारे माननीय मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब के वालिद साहब, वो लोग भी थोड़ा नाम हो गए और हम लोग यहाँ से सीपीएम का एमएलए को जिता दिए। जिताने के बाद हम लोग ये कंफर्म हो गए थे गुंजरी अंचल के लोगों कि गुंजरी अंचल में सीपीएम का मिनिस्टर होगा। जब मिनिस्टर होगा हमारा गुंजरी अंचल में, जिताने के बाद यहाँ सीपीएम का मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। याद कीजिए, जब सीपीएम जीता था, हमको अभी तक याद है, हुआ था 1 हफ्ता पीछे, हम लोग कोई नहीं सोचते थे। लेकिन चूंकि रशिया में अमन व अमान का पैगाम है, रशिया वाला कभी आपस में गुंजरिया वाला झगड़ा नहीं करता है। हम लोग